بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 19 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے لیکن ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کا دن ہے اور ایسا بابرکت دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پورا سال میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا اور آج وہ اہم دن ہم سب کے درمیان آ چکا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج 19 ماہ رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، آپ کے تمام نصیبوں کو، مقدروں کو کھول دیں گے، راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے اور غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے، یہ وظیفہ دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ میرے بھائیوں آج آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر میں یہ تمام کی تمام رقم لکھ دی جائے گی۔ آج ماہ رجب کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے اور یہ مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں رزق سے اور دولت سے بھروا لینی ہے، اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کے دن آپ نے گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے اور آج کے دن رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کے جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ کوشش کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سب سے چھوٹا اور مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر
आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई किराए का मकान में रहता है और अपना जाती मकान खरीदना चाहता है, कोई बेरोजगार है, एक अच्छा रोजगार चाहता है, एक बेहतरीन नौकरी चाहता है, या अपने कारोबार में कामयाबी चाहता है। पहले कारोबार अच्छा चल रहा था लेकिन अब कारोबार रुक चुका है। कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए आप इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए भी पढ़ सकते हैं, जल्द शादी के असबाब के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मकरूज हैं, कर्जों की दलदल में फंसे हुए हैं, इस दलदल से निकलने के लिए भी आप इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। अलगर्ज, आपका जो भी मसला है, जो भी हाजत है, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सर सजदे में रख के मांगना। आज ये ना सोचिएगा मैं थोड़ा मांग लूं, आज ये ना सोचिएगा कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी मांगेंगे मेरा रब आपको जरूर अता फरमाएगा। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। ताऊज़ और तस्मीह पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात खत्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मीह पढ़ लिया जाता है, इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मीह पढ़ लिया, तो अब आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद करना है। पूरी तवज्जो ध्यान के साथ आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के 2 सफाती नामों का वजीफा है। ये 2 नाम जिसे इस्मे आजम भी कहा जाता है, और जिस बंदे के हाथ में ये इस्मे आजम लग जाता है उसके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। बेशुमार रिस्क उसकी तकदीर में लिख दिया जाता है। ये इस्मे आजम या हय्यु या कयूम है। या हय्यु या कयूम की फजीलत और बरकत के बारे में अगर बताऊं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आज के दिन की हर घड़ी कबूलियत की है, जिसमें मांगने वाले को छप्पड़ फाड़ के अता किया जाता है, जिसमें मांगने वाली की नस्लों को रंग दिया जाता है, घर के हालात को बेहतर बना दिया जाता है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त कहा करते हैं कि या हय्यु या कयूम पढ़ने वाला रब करीम से खजाने भी मांगेगा तो रब की जात इसको मुकद्दर में लिख देगी। आपने या हय्यु या कयूम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कयूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कयूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कयूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यु या कयूम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों और मेरी बहनों सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यु या कयूम 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आपने निहायत ही तवज्जो और ध्यान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में डूबकर पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है। अल्लाह पाक का करम होगा, आप रब करीम के सामने जिस हाजत को लेके बैठेंगे वो हाजत 100% गारंटी से पूरी होके रहेगी। जब आप 11 बार या हय्यु या कयूम पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है इसे गैबी खजानों वाला वजीफा कहा जाता है। ये वजीफा पढ़ते ही फौरी तौर पर गैबी मदद आ जाती है। गैब से फरिश्ते आके आपकी मदद कर जाते हैं, आपके बिगड़े काम संवार जाते हैं, आपकी परेशानी को दूर कर जाते हैं। आपने कुरान पाक की एक आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। इस कुरानी आयत का मतलब है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जब बंदा इस फानी दुनिया में रब को पुकारता है कि मेरे लिए सिर्फ मेरा रब ही काफी है, रब फरमाता है जाओ फरिश्तों इस बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा कर दो। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसे मांगता है, गैब से इसकी झोलियां भर दो। अगर आप भी गैब से अपनी झोलियां भरवाना चाहते हैं, अगर आप भी गैब के खजानों से झोलियां भरना चाहते हैं तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने की देर है। मेरा रब आपको अपने खजानों से माला माल कर देगा। तवज्जो कीजिएगा, आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह पढ़ते दौरान आपकी जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है,
आप रब करीम से मांगते चले जाएं। अगर आप पहाड़ जितना सोना भी मांगेंगे तो मेरा रब खजाने गैब से आपको अता करेगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 100 बार पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये एक कुरानी सूरत का वजीफा है जिससे दौलत वाली सूरत कहा जाता है। इस कुरानी सूरत को सूरह कौसर कहा जाता है। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफार ने नाउज बिल्ला ताने देना शुरू किए, आपको बुरा भला कहना शुरू किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अमीन को वही की कि जाओ सूरतुल कौसर का तोहफा मेरे हबीब की बारगाह में पेश करो। बेशक कुफारी हैं जो बेनस्ले हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब की तरफ से जवाब दिया। सूरह कौसर के आपने पहले भी बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत सारी तस्बीहात पढ़ी होंगी, लेकिन ये आज का अमल बहुत खास है। ये आज का अमल यकीन करें आपके मामलात को बेहतर कर देगा, आपके रास्तों की रुकावटों को हटा देगा, नसीबों को खोल देगा। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने मेरे भाइयों सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 29 बार पढ़ना है, यानी 29 टाइम पढ़ना है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। अगर हम पर एक बार नजर रहमत हो जाए तो वो पूरी जिंदगी के लिए काफी है। बस आपने इन अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना। बाज लोग जल्दी बहुत करते हैं। देखिए, जो बंदा जल्दी करता है ना वो बंदा कामयाब होता है, क्योंकि इसकी तरतीब सही नहीं होती, इसका ध्यान, इसकी तवज्जो नहीं होती। लेकिन आप पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ ये वजीफा पढ़िएगा। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। मैंने आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका अच्छी तरह बता दिया है कि आपने कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अल्लाह के हुजूर खुसूसी दुआ मांगनी है और अपनी सारी हाजात, सारी परेशानियां, सारे मसाइल अल्लाह के सुपुर्द कर देने हैं और रो रो के गिड़गिड़ा के सच्चे दिल से पूरे यकीन के साथ अल्लाह से मांगना है। अल्लाह पाक आपको खाली हाथ नहीं लुटाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे भाइयों इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।